بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امن ملک اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل پہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ تو ناول ہے تشتہ اسبام، آج ہے اس کی قسط نمبر 25۔ ناول ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بات بتا دوں کہ ناول میں جو نیو کریکٹر کی انٹری آج ہو رہی ہے، اس کے متعلق میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، لیکن میرا اس کا کنفرم نہیں تھا کہ میں اس کے ناول میں کیریکٹر اس کا رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی۔ پھر میں نے اس کا کافی زیادہ اس کے ناول کے اندر میں نے جیسے سوچا تھا، پھر میں نے اسی حساب سے چلی ہوں۔ پہلے میرا ارادہ بدل بھی رہا تھا، بن بھی رہا تھا، تو اب میں نے یہ ساتھ ہی لے کر چلنا ہے۔ تو لیکن اس کا مجھے ایشو یہی تھا کہ وائس اوور کرنی ہے، تو مجھ سے یہ جیسا میں نے اس کریکٹر کو سوچا ہے وہ میں کمپلیٹ نا وائس اوور میں اسے نہیں کر سکتی۔ میں لکھ لوں گی، وائس اوور مجھ سے ہو نہیں پائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں کسی وائس اوور آرٹسٹ کو ڈھونڈ لوں، تو مجھے ابھی تک وہ ملا نہیں ہے، تو میں اس کو اپنے حساب سے لے کر چلوں گی۔ لکھ میں اسے ویسے ہی رہی ہوں جیسا میں نے سوچا تھا، لیکن ویسا میں پروناؤنس نہیں کر پاؤں گی۔ لائک دیکھیں کہ یہ کیریکٹر میں جیسا آپ لوگ پڑھیں گے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کس طرف سے کہہ رہی ہوں۔ تو ایپیسوڈ کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، اور جو غلطی ہوتی ہے اس پہ درگزر کر لیا کریں۔ اینڈ جنہوں کو وائس اوور میں ایپیسوڈ نہیں پڑھنی ہوتی، لائک آپ لوگوں نے خود ریڈ کرنی ہوتی ہے، تو میری سپیڈ کا مقابلہ جیسے یہاں پہ میں اسے اپنی سپیڈ کے حساب سے ناول کو اسکرول ڈاؤن کرتی ہوں۔ آپ لوگ ویڈیو کے ٹاپ کارنر پہ سیٹنگ کا آپشن ہے، وہاں سے آپ لوگ ویڈیو کی سپیڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اور جن کو وائس میں نہیں سننی وہ وائس آف کر لیں، کیونکہ میں وائس میں دیتی ہوں کہ یہاں پر ہیں کچھ ریڈرز کہ جنہوں کو وائس میں ناول ریڈ کرنا ہوتا ہے، تو میں خاص کر ان کے لیے وائس میں دیتی ہوں۔ تو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور تھوڑا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ تشتہ اسبام از قلم مومنہ ملک، قسط نمبر 25۔ ہاشم خان اپنی بیوی کو اسپتال سے لے کر سیدھا ڈیرے پر پہنچے تھے۔ دلدار خانزادہ بھی آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ چند خاص لوگ تھے جن کی موجودگی میں زلیخا بیگم سے سردار کی بیوی نے معافی مانگنا تھی، لیکن سردار صاحب چونکہ اپنی بیوی کو لائے ہی نہیں، اب یہ سوال تھا کہ وہ کیوں نہیں لایا۔ اس نے سوال کے جواب میں بس اتنا کہا کہ ہاشم خان آ جائیں، سب سمجھ آ جائے گا۔ وہ ریلیکس سا اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ خبر مل گئی تھی کہ ہاشم خان اور زلیخا خانم پہنچ چکے ہیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ تمام کے روبرو موجود تھے۔ دلدار خانزادہ نے تعصب سے ہاشم خان کو بیوی سمیت مردوں والی سائڈ آتے دیکھا تھا۔ ایک وہ جو بیوی کو لانے کو تیار نہ تھا، دوسرا اس کا چاچا، بیوی کو لایا تو کدھر۔ سردار، میری بیوی آپ سے اور سردارنی سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ ہاشم خان نے زلیخا بیگم کو پہلو میں کھڑا کر کے مضبوط لہجے میں کہا۔ سردارنی یہاں نہیں آئے گی، آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہیں۔ اگر میری سردارنی سے معافی سننے کے خواہش مند ہیں تب بھی میں حاضر ہوں۔ دلدار خانزادہ نے انداز و اطوار ایک سردار کی طرح ہی رکھا۔ اس نشست پر بیٹھ کر سردار کو غیر جانبداری سے کام لینا ہوتا ہے، کس سے کیا رشتہ ہے یہ بھول کر۔ جبکہ اس کے بعد پر سب نے اس کو دیکھا۔ حیرت در حیرت کا مقام کہ دلدار خانزادہ کسی سے معافی مانگے گا۔ وہ انازاد پٹھان اپنی بیوی کی جگہ معافی مانگنے کا کہہ رہا ہے، تعجب خیز۔ سردار، ہم آپ کے منہ سے معافی سنیں اس سے قبل گردن کٹ کر گر جائے۔ دراصل غلطی میری بیوی کی تھی، اس نے یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہوئے غلط بات بول دی جس کا سردارنی کو برا لگا اور تماشا ہو گیا۔ ہاشم خان نے بنا توقف سارا قصہ اپنی زبانی بیان کر دیا۔ پہلو میں کھڑی عورت پر بھروسہ نہیں تھا، جسے اسٹیچو کی طرح کھڑا کیا ہوا تھا۔ اور وہ غلط بات کیا تھی یہ بیان کرنا پسند کریں گے آپ زلیخا خانم؟ دلدار نے بت بنی زلیخا بیگم کو بیچ میں گھسیٹا کہ جب یہاں آنے کی زحمت کی تو منہ کھولنے میں کیا مسئلہ ہے۔
जबकि जुलेखा बेगम को लगा अब खैर नहीं। हाशिम खान की मिन्नतें तरले करके मनाया था कि मैं सिर्फ खड़ी होंगी, बात आपने करनी है। दिलदार ने उन्हें मुखातिब करके सहमा दिया, और जो सवाल दागा वो तो और भी खतरनाक। जुलेखा बेगम ने नामहसूस अंदाज में चादर के अंदर से सफ़ेद प्लास्टर में जकड़ी बाजू को थोड़ा जाहिर करके लब हिलाए। मैंने बस एक घरेलू बात की थी। नज्जाकी तो हर घर में होती है, चार बर्तन कहाँ नहीं बचते सरदार साईं। जुलेखा बेगम ने मुंह खोलकर यह कहा। बात दो चार बर्तनों की नहीं, किसी के किरदार की हुई थी। एक जीते जाते जागते इंसान के किरदार पर आपने सवाल उठाया। उससे आगे भी मैं ही बताऊं या आप बताएंगी? उसने सख्त अंदाज अपनाया। वो मुंह पर झूठ बोल रही थी, इस बात ने गुस्से का ग्राफ बढ़ाने का काम किया। वो बस एक बात थी, किरदार कशी नहीं की थी। आपकी बीवी ने जानबूझकर हंगामा मचाया। वो औरत वक़्त और हालात माप कर भी परहेज़गार ना हुई और अलबेला को सरदारनी ना कहा। हाशिम खान का दिल एक हाथ घुमाने को कर रहा था। मैंने यहाँ आने से पहले अपनी सरदारनी से सारी बात जान ली थी। आपको मुश्किल आ रही है तो मैं दोहरा देता हूँ आपके वो अल्फाज जिनको सुनकर सरदारनी को गुस्सा आया। दिलदार की बात पर जुलेखा बेगम ने बेसाख्ता सर को नफ़ी में हिलाया। मैं मानती हूँ मुझे वो अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, गलती मेरी है। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप बड़ों से। हाथ जोड़ दिए गए, इसके अलावा कोई रास्ता बचा जो ना था। दिल कड़ा करके जुलेखा बेगम को ये करना पड़ा था। आपकी ये गलती माफ़ की जाती है। आइंदा ज़ाती मामलात का महफिल में बैठकर जिक्र करने से गुरेज कीजिएगा। अब आप जा सकती हैं। दिलदार को रोककर नूरुद्दीन बाबा ने मामला समेटते काम लिया। उन्हें कल भी लोगों को सरदारनी को पेश करने का कहना ठीक नहीं लगा था। शुक्र था दिलदार उसे नहीं लाया। हाशिम खान पे अफसोस के घर की औरत को लेकर आ गया। जुलेखा बेगम को ड्राइवर के साथ हवेली रवाना कर दिया गया। हाशिम खान रुक गए थे। दिलदार खानजादा उठकर बाहर के मामला देखने चल दिया था। नूरुद्दीन बाबा का इरादा हाशिम खान की क्लास लेने का था। ये मंजर एक प्राइवेट अस्पताल का था, जहां मरीजों का इलाज बिला मुआवजा होता है। यहाँ जो डॉक्टर्स तैनात हैं वो जदीद इदारों से ट्रेन हैं। अक्सर का ताल्लुक दीगर ममालिक से था। यहाँ तमाम अमराज का इलाज किया जाता, सिवाय दिल के मर्ज का। दिल का कोई डॉक्टर आने पर कायल ना था कि एक छोटे इलाके में अपना वक़्त बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसे में डॉक्टर समारा अरमान ने ये ओहदा संभाला। उसका शुमार बेहतरीन डॉक्टर्स में होता था। लंदन से डिग्री होल्डर थी। सिंध पाकिस्तान में पैदाइश हुई थी, इसलिए यहीं पर काम को तरजीह दी थी। उसका बाप पठान था और माँ सिंधी खानदान से थी। जब भी समारा के रूप और पहनावे में दोनों रंग पाए जाते थे। उसकी शक्ल पठानों सी और पहनने ओढ़ने का ढंग सिंधी तर्ज पे था। ठोड़ी पर तीन काले नुक्ते नुमा दिल बहुत दिलकश लगते थे। आंखें और बाल भूरे रंग के थे। वो बहुत हसीन थी, शख्सियत में शोखी भी रखती थी। आज अस्पताल में इमरजेंसी होने की वजह से काफ़ी मसरूफ़ रही। इस वजह से अपना फ़ोन तक देखने की फुर्सत नहीं मिल पाई थी। फारिग होकर कैबिन में आई, अपना मोबाइल देखा तो दिलदार खानजादा के कई मिस कॉल्स ने चौंका दिया। ये बंदा बिना काम फ़ोन नहीं कर सकता था। समारा ने वापस कॉल मिलाई लेकिन काट दी गई। उसने फ़ोन को कान से हटाकर घूरा। अजीब इंसान है, जो चाहता है वो तभी के तभी, ना हो तो बस अल्लाह की पनाह। डॉक्टर समारा, आपके लिए सरदार साईं की तरफ से पैगाम है कि आपके लिए एक स्पेशल पार्सल आपकी हवेली भेजा गया है, देख लीजिएगा।
नर्स ने अंदर आते बताया। वो उसकी तरफ घूमी। कैसा पार्सल? ना समझ अंदाज पर नर्स ने लाइल्मी का इजहार किया था। भला उसे क्या मालूम। अच्छा फिर तुम जाओ, हम घर जाकर देख लेगा। समारा ने अपनी जगह संभाल ली थी। थकन से चूर चूर थी और दिलदार नामी शख्स को चैन नहीं। डॉक्टर समारा, आप ये टेक्स्ट करके सरदार साईं को बता दीजिए, वरना मेरी क्लास लग जाएगी उनसे। वो अपना डर मुंह पर सजाकर बता रही थी। अच्छा यार, कर देता हूँ सरदार साईं को टेक्स्ट मैसेज। उसने अल्फाज दांतों में चबाते अदा करके नर्स को भेज दिया। फिर मोबाइल उठाकर मैसेज टाइप करने लगी। साईं, तुम इंसान है या राक्षस? वहां बैठकर तुमने हमारा स्टाफ काबू किया हुआ है, और ये तुमने क्या भेजा हमको? वो काफी भला चंगा लिखना चाहती थी, लेकिन उसके उलट लिखकर भेजा। रिप्लाई जल्दी नहीं आना, इसलिए आरामदाह हालत में बैठकर थोड़ा रेस्ट करने लगी कि तभी मोबाइल पर टून बजी। कुछ बहुत खास है, तुम्हें पसंद आएगा। दिलदार का मैसेज पढ़कर समारा को तजस्सुस ने घेरा। हम जानता है तुम पुरजोश कर रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं साईं। समारा ने सोच कर रिप्लाई किया। लगाओ शर्त, अगर तुम्हें पसंद ना आया तो पार्सल वा, वापस भेज देना, मैं एतराज नहीं करूंगा। दिलदार ने तमाम की सोच से हटकर जवाब देने की कसम उठा रखी थी। समारा गुमान में थी, अभी बता देगा। शर्त नहीं लगाता, क्योंकि हम हर बार हार जाता है, लेकिन तुम्हारा पार्सल पसंद नहीं आया तो आग जरूर लगा देगा उसको। समारा ने शैतान का इमोजी लगाकर मैसेज भेज दिया। आगे से देखते हैं का मुख्तसर जवाब मिला। फिर वो ऑफलाइन हो गया, शायद मसरूफ था। समारा काफी देर फोन पकड़े सोचती रही, भला ऐसी कौन सी चीज है जो वो इतने यकीन से कह रहा है कि पसंद ना आए तो वापस भेज देना, जबकि वो वाकिफ है कि समारा अरमान को कुछ आसानी से पसंद नहीं आता। उसकी पसंद कभी हीरे के बराबर शय होती तो कभी जमीन पर पड़े रुपया से भी कम। खैर, ये मेहमान ड्यूटी खत्म होने के बाद ही सोचना था। इसका टाइम 7 बजे पूरा होगा, अभी काफी वक्त बाकी था। राउंड लगाने की गर्ज से वो कैबिन से निकल गई। एक हॉल नुमा कमरे के बिस्तर पर अस्कर कमाल ने आंखें खोली थी। 24 घंटे बाद होश आया था। हिसियात बेदार होने पर उसे एहसास हुआ किसी अनजान जगह लाया गया है। ये कमरा किसी हवेली का हो सकता था, जिसकी कुशादगी ये जाहिर करती थी। वो बेड से उतरा था। बड़ी दुश्वारी आई, क्योंकि 2 दिन की भूख प्यास ने जिस्म में कमजोरी की हुई थी। वो दीवार के सहारे चलता हुआ खिड़की तक आया था, जब बाहर के मंजर ने हंसती हिला के रख दी। जहां तक नजर जाती, दूर दूर तक सब्जा ही सब्जा था। तेज धूप और हल्की सी गर्मी ने एहसास दिलाया, ये इस्लामाबाद नहीं, कोई गर्म इलाका है। अस्कर कमाल का जहन चकरा गया। हंगामा मचाने की बजाय आसपास नजर दौड़ाकर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर 2 खिड़कियों के अलावा एक ही दरवाजा था। दिलदार खानजादा ने उसे यहाँ कैद किया था तो नजर भी रखी हुई होगी। दरवाजे के बाहर उसके बंदे मौजूद होंगे। वो जल्दबाज होने की बजाय आराम से सोच विचार करने वापस बेड पर आकर साबका पोजीशन में लेट गया। अगर कोई आदमी अंदर आया तो उस पर वार करके भाग निकलेगा, या जो भी मौका पर कर सका जरूर करेगा। सुबह वो नाश्ते के बाद हवेली के निजाम का जायजा लेने में जुट गई थी। काफी कुछ इकट्ठा कर हावजे में महफूज कर लिया था। उसे सोच लिया था हवेली के मकीनों का जीना हराम कैसे करना है, खासकर जुलेखा बेगम का।
अभी अपनी प्लानिंग में ही मसरूफ थी जब जुलेखा बेगम लालो लाल चेहरा लिए हॉल से गुजरी। अलबेला ने नफरत में दहकती आंखों के साथ मुखातिब किया था। रुके तो सही चची सास जी। उसने अल्फाज को चबाया और उनके ऐन सामने आकर रुकी थी। किधर से आ रही हैं और किधर को जा रही हैं? उसके हुक्मिया अंदाज पर जुलेखा बेगम के माथे पर बल पड़े। तुम कौन होती हो ये सवाल करने वाली? वही अजली नागवार अंदाज। हवेली की खानम और कबाइल की सरदारनी हो जुलेखा बेगम। उसने दोनों हाथों की दो दो उंगलियां हवा में लहरा कर कहते जुलेखा बेगम को नए सिरे से आग लगाई। बदतमीज लड़की, मेरा नाम लेती हो? तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई? अभी वो बात पूरी करती कि अलबेला ने वही दो उंगलियां जुलेखा बेगम के लबों पर जमा दी। मेरी माँ ने तमीज बहुत सिखाई है, मगर शर्त ये है कि सामने वाला तमीज करवाने वाला बने। और आप जनाब तमीज का ते भी डिजर्व नहीं करते जुलेखा बानो। अलबेला ने जिस सख्त तरीन अंदाज में कहकर उंगलियां हटाई थी वो देख कर रह गई। लड़की, होश में हो ना? जानती हो तुम्हारी इस गुस्ताख जुबान का सरदार को बता दूं तो 2 मिनट के अंदर तुम्हारी अकड़ निकल जाएगी। इस धमकी पर बेसाख्ता अलबेला को हंसी आ गई। सरदार जी की अकड़ मेरे सामने पानी भरती है, क्योंकि निकाह नामे पर वो खुद को मेरा ताबे कर चुके हैं। चाह कभी चूं चान नहीं करेंगे, फिर भी आप आजमा कर देख लेना। वो जो मुंह आया कह गई। यह शायद दिलदार खानजादा की नरमी को उसकी कमजोरी समझने की गलती कर बैठी थी। जो भी हो, पर अगर ये जुमला दिलदार खानजादा की समात में पहुंचा तो अलबेला की खैरियत हरगिज नहीं होने वाली। 2 दिन की नरमी पर ज्यादा खुशफहम मत हो, तुम्हें मालूम नहीं वो कितना सफाक इंसान है। जुलेखा बेगम ने हंसी उड़ाते कहा। पर न जाने क्यों अलबेला को ये अल्फाज चुभ गए। आप तमाम के लिए वो सफाक होंगे, मगर मेरे हक में वो अपने नाम जैसे ही दिलदार हैं। सुबह गार्डन वाला मंजर तो देखा ही होगा आपने। उसने जवाब में इस्तेहकाक से शौहर की साइड ये सोच कर ली थी कि मुकाबिल उसे हल्का न गर्दान ले। उसने हरगिज खुद को ये नहीं जताया कि दिलदार के लिए सफाक लफ्ज बुरा लगा। जुलेखा बेगम को गार्डन का मंजर याद आया, जब इंतहाई बेशर्मी से ये लड़की अपने शौहर के मुंह पर झुकी हुई थी। वो मंजर जुलेखा बेगम के अंदर तब भांबड़ जला गया था। कितनी मुश्किल से बर्दाश्त किया था कि इसने फिर याद दिला दिया। गार्डन का मंजर तुम यूं बता रही हो जैसे सरदार ने तुम्हें करीब किया हुआ था, जबकि वो सीधा साधा है। दरअसल तुमने मुझे दिखाने के लिए वो हरकत अंजाम दी थी। हमारा सरदार ऐसा कर ही नहीं सकता। अंदाज काफी हद तक अमेज और मगरूर था। तभी बातों बातों में अलबेला की गर्दन पर नजर जा ठहरी। फाउंडेशन की तह के नीचे सुर्ख धब्बे नजरों के सामने थे। अलबेला ने इर्तकाज पर देखा तो दंग रह गई। दुपट्टे की वजह से गर्दन पर जगह जगह से फाउंडेशन मिट चुकी थी, जहां से सुर्ख निशान दावत नजारा पेश करते दिखाई दे रहे थे। वो जल्दी से दुपट्टा ठीक करने लगी कि एक शैतानी ख्याल के तहत रुक गई और अगले लम्हे एतमाद से पलके उठाकर अपनी तरफ ही हैरानी से देखती जुलेखा बेगम को देखने लगी। ये आपके सीधे साधे सरदार का कारनामा है, इनको लव बाइट्स कहते हैं। उसने मुस्कुराते हुए जैसे इल्म में इजाफा करके बताया हो के लिए बताया हो। जुलेखा बेगम की शक्ल देखने लायक थी। गुरूर का घड़ा बीच चौराहे फूट गया था। आगे बहस करने को कुछ समझ नहीं आया तो कन्फर्म करती चली गई। अलबेला ने सुख का सांस लेते जल्दी से गर्दन छुपाकर कमरे की तरफ दौड़ लगाई। उसके बाद शाम होते होते अलबेला को ये भी पता चल गया कि जुलेखा बेगम जहाँ से आई थी वहाँ उसने भी जाना था, मगर दिलदार खानजादा ने खुद फैसला करते उसे बताना तो दूर हवा तक न लगने दी थी। वो शाम से भरी हुई थी। दिल तो कहा,
तभी उसके डेरे पर पहुँच कर पूछे कि हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना मशवरा ये करने की। पर वो शांत रही, अपना गुस्सा ज़ाहिर करके आस-पास मौजूद लोगों को अपनी कमज़ोरी नहीं दिखा सकती थी। अब शाम से रात हो गई, दिलदार का कोई अता-पता नहीं था। आखिर जब इसका मीटर शॉर्ट हो गया, तो कमरे से निकलकर हॉल में आई थी। रात का खाना सबने खा लिया होगा, यही सोचकर आ गई बाहर जाने की गर्ज से। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करती नीचे आई, जभी वो नज़र आ गया। उसका गुस्सा, जो आखिरी हद पे था, वो अपनी हद क्रॉस करता चला गया। आपकी हिम्मत! अलबेला आंधी तूफान की तेज़ी से उस तक पहुंचकर गुर्राई ही थी कि उसके बिल्कुल पीछे डाइनिंग हॉल में हवेली वालों को बैठा देख मुंह बंद कर गई। और फिर जो उसने किया, बाकी तो बाकी, वो खुद भी हैरान रह गई। दिल आप आ गए, खुश आमदीद। वो मुस्कुराकर उसका वेलकम करती उसके सीने से लग गई, पुश्त पर हाथ बांधते कुशादा सीने पर चेहरा रखकर आंखें बंद कर ली। दिलदार खानजादा से कोई पूछता दिल का रुकना किसे कहते हैं, वो जालिम सीधा सीधा धड़कनों से खेल गई। वो साकित खड़ा उसका चेहरा अपने दिल के मुकाम पर और सांसों का जेरो बम महसूस कर रहा था। उसकी नाजुक बाहों का घेरा दिलदार के गिर्द हक और जुर्रत से बंधा हुआ था। वो लड़की अपनी नादान अना के हथियार से दिलदार खानजादा का वजूद बर्फ का कर चुकी थी। दिलदार ने अपनी काली गहरी आंखों से अलबेला के दुपट्टे में ढके सर को देखा, फिर नहायत नरमी के साथ उसे खुद से अलग किया। ये अमल कितनी दुश्वारी से अंजाम पाया, इसका अंदाजा दिलदार खानजादा को ही था। ये लड़की ऐसी हरकत ऐसी जगह पर ही क्यों करती थी, जहां सबके सब इन दो को देख रहे थे। दिलदार ने ही समझदारी से काम लेना था। खानम, तबीयत ठीक है आपकी? उसने सरगोशी में पूछा। उसका इशारा किस तरफ था? अलबेला ने समझ कर भी अनजान तासुर दिया। पहले नहीं थी, अब आपको देखकर बिल्कुल ठीक हो गई। क्या खाना खाया आपने? नजरें झुकाए उसकी कमीज पर हाथ फेरते हुए आखिर में नजरें उठाकर पूछा। दिलदार ने बेख्तियार सर को नहीं में हिलाया। मैंने भी नहीं खाया, आपका ही इंतजार कर रही थी, आए फिर आपको अपने हाथ से सर्व करती हूँ। अलबेला उसके बाजू में हाथ डाले डाइनिंग हॉल में ले आई। वो भी चला आया। इधर बैठे अपनी जगह पर। अलबेला ने उसकी कुर्सी खींचकर उसे इशारा किया, पर वो चुप सा उसके चेहरे को देख रहा था। बाकी सब भी खाना छोड़े इन्हें देखने में मसरूफ थे। दिल बैठ जाए ना, कसमें बहुत शिद्दत वाली भूख लगी हुई है मुझे, और देखे ना सब हमें ही देख रहे हैं। उसने मुंह फुलाकर नाराजी से कहा। तब दिलदार ने तमाम पर नजर डाली। ये एक नजर काफी साबित हुई, तो तमाम सर प्लेट में झुक गए। जुलेखा बेगम ने चम्मच पर ही कस कर तैश को दबाना चाहा। जबकि दिलदार जबकि दिलदार अलबेला का हाथ पकड़कर उसे अपनी जगह पर बिठाकर खुद दूसरी कुर्सी खींचकर उसके बराबर लगाकर बैठ गया। ये इतनी जल्दी हुआ कि वो भी देखती रह गई। मैं 10 मिनट से यहीं बैठा आपका इंतजार करता, अभी बुलाने ही उठा था कि आप आ गई। आइंदा अपने खाने पीने पर कोताही करेंगी तो खाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका अंदाज डांटने वाला था। वो सर को मासूमियत से जंबिश देकर अपनी प्लेट में खाना डालने लगी। जब अपना बोला जुमला याद आया कि वो दिलदार को सर्व करेगी। पहले आपको सर्व करूंगी सरदार जी। फिर उसने अपनी प्लेट से पहले दिलदार की प्लेट सजाकर उसके सामने रखी और बाद में अपनी लेकर बैठ गई। फिर उसकी हिम्मत ना हुई सर उठाने की, कुछ बोलने की। आज के लिए इतनी बेबाकी बहुत थी।
अब फुर्सत में ये सोचना था कि अगर ये शख्स खुश फहम हो गया है तो जो असल रूप कमरे में चलकर दिखाएगी तब क्या रद्द-ए-अमल देगा। तो ये थी आज की एपिसोड, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी वही, जो अगर कोई गलती हुई है तो दरगुजर करें और अच्छा सा रिव्यू दें। एंड मैं कोशिश करूँगी कि एपिसोड जो नेक्स्ट है वो मैं कल ही दे दूँ, नहीं तो फिर मैं पक्की-पक्की मैं आप लोगों को उम्मीद है कि मैं 1 दिन के गैप से लास्ट में दे दूँगी। और वैसे भी 1 के सब्सक्राइब पे मैंने वैसे भी सरप्राइज़ एपिसोड देने का सोचा था, तो वही मैं दूँगी, कल को शायद दे दूँ। कल ना कंप्लीट हुई तो मैं परसों लाज़मी दे दूँगी। तो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें और दुआ में याद रखें। अगली एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।